Hello everyone, welcome back to Nirja Education. This is second part of third lesson, Adaptations in Animals of 4th standard. If you haven't watched first part, then please watch it first and then come back here later. Okay? So children, in last part we learned about adaptations, the meaning of adaptation. We learned about how there are different kinds of habitat on the earth. Okay? And we learned about types of animal. Today we are going to learn adaptations for protection and adaptations for food. Okay, how do animals protect themselves, and there are how many types of animal based on their food habit. Okay, so before we start, don't forget to subscribe this channel and press the bell icon. Animals protect themselves for survival. They have special sense organs which protect them from predators. They confuse their predators by camouflage and mimicry. एनिमल्स अपने आप को बचाने के लिए किससे? शिकार से, दूसरे एनिमल्स से, ताकि वो उनको मार के खा ना जाए. तो एनिमल्स इसके लिए मिमिक्री करते हैं, कैमोफ्लेज करते हैं. ओके, सो व्हाट आर दिस वर्ड्स, व्हाट डज इट मीन एंड हाउ दे प्रोटेक्ट देमसेल्व्स? लेट्स सी. Children, some animals do color protection. Okay, color protection. They change their skin's color into the color of the surrounding. Okay, वो अपने skin का color अपने surrounding में जो color होता है उसमें change कर देता है. Why? Because they can save themselves from their predators or their enemies. Okay, क्यों ऐसा करता है? ताकि वो अपने enemies से अपने आप को save कर सके. This process is called camouflaging. Okay, ये जो प्रोसेस है उसको camouflaging कहते हैं. Now what does mean camouflage? Camouflage का मतलब क्या है? Children, write down every word which I write on the board. Okay, जो भी मैं नए वर्ड्स आपको बोर्ड पे लिखा वो आपको अपनी नोटबुक में कॉपी कर लेने हैं. So let's see meaning of camouflage. CAMOUFLAGE, camouflage means the natural coloring or form of an animal which enables it to blend in with its surroundings. Okay, so animals अपने skin का कलर नेचुरली चेंज करते हैं अपने सराउंडिंग्स में, ताकि वो कलर मिक्स हो जाए अपने सराउंडिंग्स के साथ और उनका कोई एनिमी आए तो उनको पहचान ना पाए. ओके, सो इसे कहते हैं कैमोफ्लेजिंग. नाउ अगेन देयर इज अ न्यू वर्ड, ब्लेंड. ब्लेंड मतलब मिक्स करना. ओके, सो that is how animals save themselves from their predators. Now what does predator mean? Predator means PREDATOR. Okay, predator means an animal that naturally preys on others. Okay, कोई एनिमल जो नेचुरली दूसरे एनिमल को प्रे करके यानी कि शिकार करके कंज्यूम करता है अपने फूड के लिए, तो उसे कहते हैं प्रेडेटर, और हिंदी में कहते हैं उसको शिकारी. ओके, so children, these are two important words and we learned how animals do camouflaging to save themselves. Let's see some examples. Children, grasshopper, locust, chameleon and zebra are the examples of animals which change their color to protect themselves. Okay, the gentle stick animals resemblance to a twig protect it. Okay, you can see the picture of a stick animal and you can see the picture of a twig. Okay, twig यानी कि टहनी, पेड़ की डाल या टहनी. ओके, सो ये जो स्टिक एनिमल होता है आप उसको देख सकते हैं कि वो एक ट्विग की तरह दिखता है. सो इसकी वजह से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाता है अपने एनिमीज से. पोलर बियर्स हैव वाइट फर एज अ स्किन, सो इट ब्लेंड्स वेल इन द रीजन ऑफ कोल्ड वेदर. ओके, पोलर बियर के स्किन वाइट कलर की होती है, वाइट फर होते हैं, वो स्नो के कलर में, स्नो भी वाइट होता है तो अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं यानी कि मिक्स हो जाते हैं. सो that's how they can protect themselves. Some animals protect themselves by hibernation. What does hibernation mean? This is the meaning of hibernation I have written on the board. The condition or period of an animal or plant spending the winter in a dormant state. Okay, ऐसी कंडीशन जिसमें एनिमल या प्लांट विंटर में डॉर्मेंट स्टेट में स्पेंड करता है. डॉर्मेंट स्टेट यानी कि कुछ किए बिना सोते रहना. ओके,
तो उसे कहते हैं डोरमेंट, एंड इस कंडीशन को कहते हैं हाइबरनेशन. ओके, सो इन विंटर सम एनिमल्स स्लीप अ ग्रेट अमाउंट ऑफ टाइम विदाउट डूइंग एनीथिंग इन अंडरग्राउंड और इन burrows. This process is called hibernation. Okay, burrow means a hole or a cave dug by a small animal, for example rabbit. Okay, so कुछ एनिमल्स अंडरग्राउंड रहते हैं या फिर अपने बरो में यानी कि अपनी केव में रहते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट डूइंग एनीथिंग. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड हाइबरनेशन. आपने देखा होगा कि कोई और सीजन में यानी कि विंटर में आपको कहीं पे फ्रॉग्स दिखते हैं नहीं, बट जब मॉनसून आए तब वो ड्राउ करके हर जगह पे वो आवाज़ें फ्रॉग्स के आपको सुनाई देने लगती है. आपको रोड्स पे या सब जगह फ्रॉग्स आपको यहाँ वहाँ कूदते दिखते हैं. ओके, सो फ्रॉग्स विंटर के टाइम पे कहाँ होते हैं? फ्रॉग्स हाइबरनेट होते हैं. ओके, सो चिल्ड्रन, फ्रॉग्स, insects, snakes and few reptiles are the example of animals which go hibernated in winter. Okay, frog, insects, snails और कुछ reptiles यानी कि snake जैसे एनिमल. ओके, जो चलने के लिए अपने लेग्स का यूज नहीं करते तो उसे कहते हैं रेप्टाइल्स. सो ऐसे एनिमल्स होते हैं जो विंटर सीजन में हाइबरनेट हो जाते हैं ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके. वाई? बिकॉज इन विंटर देयर इज स्कैरसिटी ऑफ फूड. ओके, विंटर में फूड की कमी होती है, मतलब कि उनको खाना नहीं मिलता, तो वो हाइबरनेट हो जाते हैं. एंड इन दैट टाइम दे यूज देयर बॉडी फैट फॉर देयर नरिशमेंट. ओके, सो स्क्विरल्स एंड पोलर बियर्स स्लीप फॉर मंथ्स एट अ स्ट्रेच. ओके, स्क्विरल्स और पोलर बियर्स महीनों तक सोते रहते हैं कुछ किए बिना विंटर सीजन में. ओके, तो ऐसे वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं वेदर से एंड फूड की स्कैरसिटी से. नाउ नेक्स्ट इज एस्टिवेशन. इन समर some animals in the desert sleep for a long time to save water. It is called estivation. Okay, desert में कुछ animals long time तक सोते रहते हैं समर में. okay, ताकि वो water save कर सके. इसे कहते हैं estivation. Some animals imitate the sound of other animals who are their predators. Okay, कुछ animals अपने predators का, अपने enemies की आवाज़ निकाल के उनको confuse करते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल द मोथ कैटरपिलर. द मोथ कैटरपिलर कन्फ्यूजेस स्नेक बाय इमिटेटिंग इट्स साउंड. ओके, मोथ कैटरपिलर स्नेक की आवाज़ निकाल के उसको कन्फ्यूज करता है. सो व्हाट इज मिमिक्रिंग? मिमिक्रिंग मीन्स नकल करना, किसी और की नकल करना, किसी और की आवाज़ निकालना. तो एनिमल्स अपने प्रेडेटर्स की, अपने एनिमीज की आवाज़ निकाल के उनको कन्फ्यूज करते हैं टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स. नाउ लेट्स सी एडेप्टेशन फॉर food. Okay, animals are classified into 4 groups according to the food they eat. Okay, animals को 4 groups में classified किया गया है on the basis of the food they consume. So let's learn about it. First is herbivorous animals. Okay, plant eating animals are called herbivorous animals. जो animals plant consume करते हैं उनको herbivorous animals कहते हैं. What are the examples? Cows, goats and giraffes eat plants. Okay, तो काउस, गोट्स एंड जिराफ जैसे एनिमल्स होते हैं उनको हर्बीवोरस कहते हैं. दे हैव शार्प बाइटिंग एंड स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ. उनके पास शार्प एंड स्ट्रॉन्ग बाइटिंग करने के लिए एंड ग्राइंडिंग करने के लिए टीथ होते हैं. दे हैव लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग लेग्स टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस. उनके पास लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल करने के लिए इन सर्च ऑफ फूड. नाउ द सेकेंड टाइप इज कार्निवोरस. फ्लैश ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस एनिमल्स. फ्लैश ईटिंग यानी कि मांस. ओके, जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स का मांस कंज्यूम करते हैं एज अ फूड आर कॉल्ड कार्निवोरस एनिमल्स. फॉर एग्जाम्पल्स लायंस, टाइगर्स एंड वोल्व्स आर कार्निवोरस एनिमल्स. ओके, लायन, टाइगर्स एंड वोल्व्स है वो कार्निवोरस एनिमल्स है. दे हैव वेल डेवलप्ड टीयरिंग टीथ. उनके पास वेल डेवलप्ड टीयरिंग टीथ होते हैं दूसरे एनिमल्स का मांस खाने के लिए, फ्लैश ईट करने के लिए. ओके, some birds like eagles and vultures have sharp beaks and claws to catch other animals. Okay, eagle and vultures जैसे एनिमल्स के पास sharp beaks होती है, beak यानी कि चोंच, and claws to catch other animals to tear their flesh. Okay,
तो इन एनिमल्स को कहते हैं हम कार्निवोरस एनिमल्स। नेक्स्ट इज omnivorous. ओके, एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स आर कॉल्ड omnivorous एनिमल्स. ओके, जो एनिमल्स प्लांट भी कंज्यूम करते हैं और अदर एनिमल्स को भी कंज्यूम करते हैं, अदर एनिमल्स के फ्लैश को भी कंज्यूम करते हैं, उनको कहते हैं omnivorous एनिमल्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल bears, crows and dogs are omnivorous animals. They have sharp teeth like carnivores to tear the flesh. उनके पास कार्निवोरस एनिमल्स जैसे शार्प टीथ भी होते हैं जिससे वो अदर एनिमल्स का फ्लैश कंज्यूम कर सके, एंड दे ऑल्सो हैव फ्लैट टीथ लाइक हर्बीवोरस टू ग्रीन फूड. ओके, उनके पास हर्बीवोरस एनिमल्स यानी कि प्लांट ईटिंग एनिमल्स जैसे फ्लैट टीथ भी होते हैं फूड को ग्रीन करने के लिए. And the last type of animals are parasites. Some animals live on or inside the bodies of other animals for their food are called parasites. Okay, जो animals अपने food के लिए other animals के body के ऊपर या body के अंदर रहते हैं उनको कहते हैं parasites. For example, mosquitoes, leeches, hookworms and bugs. Okay, मॉस्किटोज अपने फूड के लिए ह्यूमन की बॉडी पे, हमारी बॉडी पे या किसी और की बॉडी पे बैठते हैं. ओके, उनमें से ब्लड सक करते हैं, तो मॉस्किटो हुआ पैरासाइट. ओके, द एनिमल्स ऑन विच पैरासाइट्स डिपेंड फॉर देयर फूड आर कॉल्ड होस्ट. ओके, पैरासाइट्स अपने फूड के लिए जिस एनिमल पे डिपेंड करते हैं उनको होस्ट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फॉर मॉस्किटो वी आर होस्ट. ओके, मॉस्किटो हमसे फूड कंज्यूम करते हैं तो हम मॉस्किटो के लिए हुए होस्ट. ओके, दे हैव सकर्स और सकिंग ट्यूब्स टू सक ब्लड आउट ऑफ देयर होस्ट. ओके, उनके पास सकर्स या फिर सकिंग ट्यूब्स होते हैं अपने होस्ट में से ब्लड सक करने के लिए. Okay children, this was third lesson of 4th standard adaptations in animals. In future we will learn more lessons of 4th standard, so don't forget to subscribe this channel and press the bell icon. Thank you.